نے بھائی فریڈم پلس میں کیا کرنا ہے، جو فریڈم میں آپ نے کیا پلس میں وہی کریں گے. اس سے پہلے آپ نے جنگ لڑی، سوائے بربادی کے، سوائے ہلاکتوں کے، سوائے پریشانی کے، سوائے بے یقینی کے حالات کے کیا نکالا ہے اکانومی میں، پولیٹکس میں، ڈیفنس میں، سیکیورٹی میں، علاقائی حالات اور معاملات میں. چین اور پاکستان ایک دوسرے پر 100% ٹرسٹ کرنے والے ملک ہیں. لڑ کر مزید کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لڑنے سے سوائے بے یقینی اور تباہی کے کچھ نہیں ملنے والا. جس ملک کی سلامتی سٹیکس پر ہے، دفاع سٹیکس پر ہے، امن و امان سٹیک پر ہے، وہاں پر ترقی نہیں ہو سکتی. اور عام آدمی جو ہے وہ بھوکا ہے، اس کو بجلی کا بل دینے میں دقت ہے، اس کو روٹی کھانے میں پرابلم ہے، تو آپ کے سارے اقدامات کیا ہیں؟ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ دہشت گردی کا جو ایک گندھا درخت ہے، جھاڑی ہے، جو اس کو اوپر سے آپ ٹریمنگ کر دیں گے کینچی لے کر تو سمجھیں کہ یہ ختم ہو گئی ہے. نو، اس کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. نپ دائول ان دا بڈ. یہ بڑی دیر کر دی ہے ہم نے. السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار، گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سفید صاحب. مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور کل اسلام آباد اور راولپنڈی میں مرکزی تقریب بھی ہوگی جس میں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان مہمان خصوصی ہوں گے. اس کے علاوہ صوبائی لیول پہ بھی ہر صوبے میں، ہر شہر میں جو ہے ریلیوں کا، تقریبات کا، سیمینارز کا سلسلہ جاری ہے. اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ 23 سے 25 مئی کو چین کا دورہ کریں گے. اس سے پہلے صدر زرداری بھی چین کا 4 روزہ جو سرکاری دورہ ہے وہ کر چکے ہیں، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بات کریں گے. سر، آج صدر ٹرمپ کی طرف سے پھر یہی کہنا تھا کہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ پلس ہوگا اگر مذاکرات کامیاب ہوئے. وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو ایک طرف دھمکی، دوسری طرف مذاکرات کی باتیں صدر ٹرمپ کی طرف سے کرتے ہیں. مجھے تو وہ بات یاد آ رہی کہ کوئی بزرگ آدمی تھے تو وہ کھالا نہیں ہوتا گاؤں میں، جی بالکل، اس کو پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کے اندر گر پڑے. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے واہ جوانی ہے. تو پھر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو اپنے آپ کو گالی نکال کر کہا کہ جوانی میں تم بڑے پہاڑ اپنا پھلانگ لیتے تھے. ہاں جی. تو تم نے بھائی فریڈم پلس میں کیا کرنا ہے، جو فریڈم میں آپ نے کیا پلس میں وہی کریں گے. اس سے پہلے آپ نے جنگ لڑی، سوائے بربادی کے، سوائے ہلاکتوں کے، سوائے پریشانی کے، سوائے بے یقینی کے حالات کے کیا نکالا ہے آپ نے اس میں سے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ یہ فریڈم والا کام جو ہے نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ توجہ دیں نیگوسیشن پر، ریکنسلیشن پر، ٹھیک ہے، معاملات کو مینیج کرنے پر. ان کی یہ جو فضول قسم کی آپ کہہ لیں کہ یہ جو لڑائی شروع کی ہوئی ہے، اس میں سے نکل کیا رہا ہے؟ اور دنیا سفر کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ رات پھر پیٹرول پاکستان میں بھی بڑھ گیا، پاکستان میں 450 روپے تک چلا گیا، 415 روپے تک چلا گیا. یہ حکومت پاکستان کو بھی اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے. باقی سب کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جا کدھر رہے ہیں. فریڈم پلس کر کے کیا کر لیں گے وہ؟ جہاں پہ کہتا ستیہ ناز وہاں سوا ستیہ ناز. ان کو تو پہلے ہی مار پڑ رہی اور پڑھنی شروع ہو جائے گی. چیزوں کو کلوز کریں، چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، کنکلیوڈ کریں ٹورڈز پازیٹیو سائن، نہ کہ آپ اس طرح کے معاملات کی طرف جائیں. دونوں کو ہی اس پر سوچنا چاہیے. سر، کنکلیوڈ کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب ایران بھی ایک طرف جیت کا اعلان کرتا ہے، ہاں جی، دونوں ہی اپنی طرف سے ہیں، تو وہ سائیکالوجیکل وار جو ہے یہ ایسے تو پھر کنکلیوڈ جو ہے کس طرح جائے گی؟ تو وہ انہوں نے کرنی، ہاں یہی کریں گے، بیٹھ کے ہی ہوگی، بیٹھ کر ہوگی. ایک طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگلے ہفتے پھر تو مذاکرات ہونے امریکی میڈیا. اور ہم جو بات کر رہے ہیں بار بار میرے جو نظر یہی آ رہا ہے کہ ٹرمپ کا جو وزٹ ہے چائنا کا، جو ایکسپیکٹڈ وزٹ ہے 14-15 مئی کو، اس وزٹ تک یہ صورتحال جو سی نا یہ ڈیفینیٹلی کس طرف لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ معاملات جو سی نا وہ ان کا منطقی انجام جو ہے وہ ہو جائے گا اور ہو جانا چاہیے. سر، 14-15 مئی کو صدر ٹرمپ کا وزٹ ہے چین کا. 23-24 مئی کو جو ہے وزیر اعظم پاکستان کا ہے. اس سے پہلے صدر زرداری بھی 4 روزہ وزٹ کر چکے ہیں. تو کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے وزٹ کو؟ بہت ہی اہم ہے وزٹ پرائم منسٹر شہباز شریف کا، اور اس سے پہلے زرداری صاحب نے دورہ کیا 4 روزہ. جی، ان کا بھی 3 دن کا یہ دورہ ہے.
डेफिनेटली पाकिस्तान और चीन जो हैं वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बड़े टेस्टेड आप कह लें कि वो फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को समझते हैं, और इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं बेशक वो अपने बाहमी ताल्लुकात में हों या वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी हो, इन सब चीज़ों के ऊपर इनकी आपस में मशावरत है और गहरी मशावरत के साथ आगे बढ़ते हैं। इकॉनमी में, पॉलिटिक्स में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, स्ट्रेटजिक आप कह लें कि प्रायोरिटीज़ में और इलाकाई हालात और मामलात में चीन और पाकिस्तान गहरे ट्रस्टेड और एक दूसरे पर 100% ट्रस्ट करने वाले मुल्क हैं। ये दौरे उसी ट्रस्ट और उसी एतमाद का मज़हर है और यकीनी तौर पर इनका ताल्लुक जो करंट सूरत हाल है, जैसे ईरान और अमेरिका की जो टेंशन है या इसके जो इम्पेक्ट हैं खित्ते के ऊपर, या अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, ठीक है, या इस रीजन में जो पोजीशन है ओवरऑल इंडिया की और जो उसके स्टैंसेस हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन और डिबेट ये करते हैं और उसके साथ साथ अपने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये विजिट्स होते हैं। और आई थिंक सो कि ये बड़ा एक साइन ऑफ रिलीफ है, रिस्पेक्ट है दोनों मुल्कों के लिए कि दोनों मुल्क एक ही महीने में पहले सदर और वज़ीर आज़म, और ये होता रहता है, इनके विजिट्स एक दूसरे मुल्कों में होते रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी साइन है, ये बहुत मजबूत और मुअस्सर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो 75 साल तल्लुकात हैं उन पर भी कुछ तकरीबात हैं, उसमें भी वो शिरकत करेंगे जी। और सी पैक, तिजारत, सरमायाकारी और बाकी जो दो तरफा ताउन है उस पर भी बातचीत होगी। तो सदर ट्रंप जो हैं, आप समझते हैं कि क्योंकि चाइना भी यही कह रहा है कि अगर डील नहीं होती तो मेन मुद्दा यही होगा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का और ईरान का, तो उससे पहले जो है मामलात हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। हम जिक्र कर चुके हैं, अगर ओवरऑल इस सारे मंजरनामे को देखें अगर हम जी, और ये जो शतरंज बिछी हुई है इसको अगर देख लिया जाए तो अब लड़कर मज़ीद कोई मसला हल नहीं होगा। लड़ने से सिवाय बेयकीनी और तबाही के कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो चीन और रूस और यूक्रेन के दरमियान भी 3 रोज़ की जंग बंदी हुई जी, बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल है कि वक्त है कि जंगों से निकला जाए और बेयकीनी का जो डेड लॉक है उसको ख़त्म किया जाए इंटरनेशनल और रीजनल आप कह लें कि मामलात पर, और दोनों मुल्क ईरान और अमेरिका किसी ऐसे लाहे अमल की तरफ बढ़ें जिससे अमन कायम हो सके, और ऐसा अमन जैसे दुनिया को एक रिलीफ मिले और फ़ायदा मिले। ठीक सर, मार्का हक बने महसूस को 1 साल मुकम्मल हो गया और आज 7 से 10 मई तक जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तकरीबात जो हैं और यहाँ कर मरकज़ी तकरीब होगी। लेकिन आज जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने एक बहुत अहम बात किया, उन्होंने यह कहा कि मार्का तरक्की अगर ना जीता गया तो मार्का हक का दिफा भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो आप कैसे समझते हैं तरक्की को तरक्की में कन्वर्ट करना लोगों की खुशहाली के लिए जो है? बहुत अहम बात है और इसके 2 हिस्से हैं इस बात के। एक तो 1 साल हो गया, ठीक है, मार्का हक को, बुनियानुल मरसूस को, और अल्हम्दुलिल्लाह कौम का जज्बा, जोश आपने देखा किस तरह से लोग जो है वो सड़कों पर आए, मुख्तलिफ रैलीज़ में उन्होंने शिरकत की, जलसों में गए, जुलूस हुए और पूरे जोश से और पूरे एक नेशनल प्राइड के साथ इन दिनों को मनाया जा रहा है। कल इसकी मरकज़ी तकरीब है GH के ऊपर, ठीक है। ये तो एक बहुत ही आप कह लें कि ज़बरदस्त मामला है। लेकिन जो बात एहसन इकबाल ने कही है ना, वो असल में एक जो कौमी सोच है ना उसको निचोड़ कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर तरक्की के मार्के को अगर ना सर कर सके तो ये मार्का हक जो है इसकी अफादियत भी गहना जाएगी। देखें, आपका दिफा और आपकी सलामती और आपकी इकॉनमी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। गरीब मुल्क, कमज़ोर मुल्क और इकॉनमी के लिहाज से बहरान का शिकार मुल्क ना तो अपना दिफा ठीक तरीके से कर सकता है, ना ही अपने सलामती के अमूर को ठीक तरह से अंजाम दे सकता है। इसी तरीके से जिस मुल्क की सलामती स्टेक्स पर है, दिफा स्टेक्स पर है, अमनो अमान स्टेक पर है, वहाँ पर तरक्की नहीं हो सकती, वहाँ पर इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और अब हमारी लीडरशिप का ये जिम्मेदारी है, ये बात हम बार बार ये कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को समझे और महसूस करे कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, हमने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपनी कोशिश से इस इज़्ज़त को बढ़ाया है, दुनिया में हमारा एक नाम बेहतर हुआ है,
दहशत गर्दी के साथ हमें जो ब्रैकेट किया जा रहा था उससे हम अलग हुए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बड़े गंदे और घिनौने इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, वो उनमें से निकले हैं हम। पाकिस्तान की सलामती और दिफा के हवाले से बड़े फजूल किस्म के मफरूज़े और प्रोपेगेंडाज हो रहे थे, उसमें से हम निकले हैं। सफारती मैदान में हमने तरक्की की है, बेहतरी आगे बढ़े हैं, हमारी इज़्ज़त हुई है। सियासी मैदान में हमने बहुत कुछ गेन किया है। तो ये सारा कुछ इसको जोड़ें इकॉनमी के साथ और जोड़ सकते हैं इस वक्त, कोई ऐसा मसला नहीं। आज ही आपको मिले हैं $1 अरब IMF से और साथ $20 करोड़ जो है वो माहौलियात की तब्दीली के। तो हुकूमतों को इसको इनकी जो एक्सपेंडिचर्स है, इनका खर्चा जो उनसा उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए ना, ताकि इसके रिजल्ट्स हैं। मुल्क जो उनसा है उसमें तो कोई कमी नहीं है। हम पहले भी बार बार ये बात कह रहे हैं, एग्रीकल्चर में चले जाएं आप, एनर्जी में चले जाएं आप, मादनियात में चले जाएं आप, मैन पावर में चले जाएं आप, जिसे कह लें कि दीगर जो कारोबारी मामलात और ज़रूरियात हैं, हमारा जो तबकात हैं, बिजनेसमैन जो उनसे हैं, जो सनतकार हैं, जो कारोबारी हल्के हैं, बड़े वाइब्रेंट हैं, बड़े तरक्की पसंद हैं, मुल्क को कहीं का कहीं लेकर जा सकते हैं। उन्हें एतमाद दें, उनको बिठाएं साथ, उनके साथ एक ट्रस्ट लेवल बढ़ाएं, किसान को एतमाद दें, काश्तकार को एतमाद दें, जो मादनियात के साथ वाबस्ता लोग हैं उनको अपने साथ बिठाकर उनसे पूछें कि हमने कैसे आगे बढ़ना है और कैसे जाना है। वो आपको मशवरे भी देंगे, आपके साथ खड़े भी होंगे। आम आदमी तो अभी भी यही सवाल कर रहा है, क्योंकि आम आदमी क्या करे, सवाल उसके पास इस सवाल के कोई जवाब नहीं है। लोग अब खौफजदा हैं कि आगे गर्मियां आ गई हैं तो बिजली के बिलों का क्या बनेगा। ऐसे ही पेट्रोल 415 रुपये कर दिया, हो गया है जो भी हुआ है जी। तो इससे ये जो ग्लिचेस हैं इनमें से निकलना पड़ेगा, ठीक, ये बहुत जरूरी है। वरना वाकई बात ठीक है कि आपकी तमाम तर जो दीगर जो प्राइड और तरक्की है वो चैलेंज हो जाएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये बहुत अहम और बड़ा हसास आप कह लें कि सवाल है और बड़ी एक फिक्र अंगेज निशानदेही है, जिसको समझने की भी जरूरत है और जिसको सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज को आप कह लें तरतीब देने की इस वक्त की जो लीडरशिप है, आप क्योंकि हम देख रहे हैं उनकी कोशिशें तो हैं, बहरहाल उनकी कोशिशें सब तरफ है, लेकिन इकोनॉमी में उनकी कोशिशें मुझे तो कहीं मतलब उसके समरात तो हम नजर नहीं आ रहे। जी, आप जो मर्जी करते रहे, अगर आम आदमी जो है वो भूखा है, उसको बिजली का बिल देने में दिक्कत है, उसको रोटी खाने में प्रॉब्लम है, तो आपके सारे के सारे इकदाम क्या है, उनका कोई फायदा है? इट इज जस्ट लाइक आप कह लें कि आपने एक भूखा बंदा है, उसके पेट पर रोटी बांध दी और कहा कि देखें आप बेफिक्र हो जाए, हमने 10 रोटियां उसके पेट से बांधी, इसका फायदा ही कोई नहीं है जब तक उसके पेट में कोई चीज नहीं जाएगी। आप आम आदमी के मसाइल को महसूस करें, ये बड़ी तकलीफ दे बात है और ये बड़ा चैलेंज है। और ये वाकई बात ठीक है कि वो जो गुर्बत का समंदर है ना, उसको इतना ना तैश दिलाएं कि वो खुशहाली के जजीरे को निगल जाए। ये बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है। सर, लोगों की कुव्वत बर्दाश्त है, कब तक ये सारा कुछ फेस करेंगे? बिल्कुल। तो ये इस पर तवज्जो दें, इसको देखें। अच्छा सर, एक और जो है वो केपी में कुछ दहशतगर्दाना जो है वो अटैक्स हुए, हंगू में जो है वो 100 से दहशतगर्द जो है उनकी कोशिश नाकाम बना दी गई, कल का ये है। और केपी में भारतीय जो है महज याफ्ता हैं 5 खवारिज उनको हलाक कर दिया। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई खुशी का मौका होता है, क्योंकि तो ये हरकत होने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। सर मैं सीधी सी बता रहा हूँ बात, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। पूरी लीडरशिप इस पर मुत्तफिक है, पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है, सिक्योरिटी इदारे इस पर मुत्तफिक है कि इसको आप कहते हैं बुरे के बजाय ना उसकी माँ को पकड़ो। ऐसे ही आप एक जगह से पानी आ रहा है, आपने हाथ में वाइपर पकड़ा हुआ है, उससे आप साफ कर रहे हैं वाइपर से पानी को, लेकिन टूटी नहीं बंद हो रही पीछे से। जब तक वो टैप और वो नल बंद नहीं करेंगे, आप वाइपर 24 घंटे लगाते रहे, वहां से गंद आता रहे। ऐसे ही तो ये जो दहशतगर्द है ना, जहां से ये आ रहे हैं, जो इनके हाइड आउट्स हैं, जो इनके ठिकाने हैं, जो इनकी पनाह गाहें हैं, जो इनके जिसे कहा जा सकता है जहां पे इनको छुपा कर रोटी दी जाती है और उनकी तरबियत की जाती है, वहां पे अटैक करें। और आपके पास ओपन स्पेस इस वक्त है, वहां पे मारे, जो जड़ है उसको खत्म करें। ये पत्ते काटते रहेंगे दरख्त के, तो दरख्त तो नहीं खत्म होगा। ये दहशतगर्दी का जो एक गंदा दरख्त है, झाड़ी है, जो इसको ऊपर से आप ट्रिमिंग कर देंगे कैंची लेकर तो समझें कि ये खत्म हो गई है। नो, इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। नप द इविल इन द बड। ये बड़ी देर कर दी है हमने। शेख सादी की हकायत है, वो कहते हैं कि अगर
चट्टान में से या पहाड़ में से निकलने वाले चश्मे को एक तिनका उस सुराख में डाल दिया जाए पहले दिन, तो वो बंद हो जाता है। इग्नोर करेंगे अगर उसको, तो उसके आगे से हाथी भी गुजारेंगे तो नहीं गुजर सकता। गुरबा कुश्तन रोज़ अव्वल, भेड़िए के बच्चे को पहले दिन ख़त्म करो, उससे ये उम्मीद मत रखोगे ये बड़ा होगा तो ये बकरी बन जाएगा। वो बकरियों को फाड़ेगा, मारेगा। नेवर एवर आप इस पर रिलाय मत करें, ये गुड तालिबान, ये बैड तालिबान। ये अभी की लीडरशिप की तो ये पॉलिसी ये है, तो उसके रिजल्ट्स भी हैं, उसके नताइज भी हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने की जरूरत है कि जो हमारे लिए ठीक है, जो अमन के साथ खड़ा है, हम उसकी इज्जत करेंगे। अदरवाइज जो भी उससे दूसरी लाइन पर आता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फैसला कौन, उसके ऊपर इक़दाम होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज की बात में जो है वो मार्का हक तो पाकिस्तानी कौम मना रही है, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो एक मिडिल क्लास तबका जो है, जो गरीब तबका है, उस तक भी उसके समरात आने चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो मार्का हक की तकरीबात चल रही हैं, लेकिन कल रात जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। तो लोगों की जो है लोगों का भी सोचना चाहिए। जो है वो एहसन इकबाल ने जिस तरह आज निशानदेही की है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान का जो इशू है, अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द आते हैं उनको जड़ से उखाड़ना जो है वो ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।